Namaste, sir. Namaste, sir. So I welcome you all again for today's presentation. Soon we will start. I request you to wait for 2 minutes. Santosh? Santosh, are you there? Santosh? Yes, I am here. Yeah. So please admit participants. You are muted yourself. I muted? No. Unmute. Please admit others. Yes, I am doing. Okay, so we will start. People are joining, but however, we'll start. I welcome you all, and my first request is please unmute yourself while meeting is going on, because it disturbance, no, it makes a lot of disturbance. So unmute yourself. I welcome you all for today's lecture on Jagdev Prasad. This is the lecture series that we have started with the aim of identifying the anti-caste Shudra intellectual across India and engaging with their ideas, legacies, their vision, writings. So we have been doing this part of this lecture series, and today we have a lecture by Professor Rajendra Prasad Singh. Professor Rajendra Prasad Singh is a well-known historian. He's a professor in VKS University. He's a historian, linguist, writer who is a well-known public figure. I think if you see his Facebook followers, there are more than 60 to 70,000 people following his writings, Facebook updates, and so on and so forth. He has been publishing a lot
particularly he works on Buddhist traditions, archival works. He published many books on Buddha Sahityaka history, and he also worked on language. He also worked and published on Jagdev Prasad. And if you see some of the writings which are published by Samyak Prakashan from Delhi, and which are well known, which are well circulated, apart from his more than 20 to 30 books that he published, and he is also well-known historians digging the past with an alternative approach, with alternative resources. He is also a person, a scholar and public intellectual who also began to pay more attention on literature also. He is the one who is actually initiated a OBC literature genre, and most of the people are writing in that line. So apart from books, his public contribution is delivering, continuously delivering lectures. I think you will find more, some of his lectures in YouTube, which are very popular among the activist scholars across India, across globe. So it is very happy and fortunate to have Professor Rajendra Prasad Singh with us, and he kindly accepted our request to deliver a lecture. And he is going to speak. Along with Rajendra Prasad Singh, Professor Rajendra Prasad Singh, we have a Santosh, Dr. Santosh. Dr. Santosh is an assistant professor in Zakir Hussain's college. He is an assistant professor in Department of Political Science. He did his MA, MPhil, PhD from JNU, Delhi. He has been working on Dalit political participation, representation, caste question, literature, and many aspects. So he's one of the young academic scholar, young emerging scholar. His range of interests are very, very diverse. And he's also with us. And he will be, after Professor Rajendra Prasad Singh lecture, he will be summarizing the lecture and adding some more points. Then we have a question answer session. Now I invite Professor Rajendra Prasad Singh to deliver his lecture. Sir, please start your lecture. सभी साथियों को सादर अभिवादन। जैसा कि आप लोगों के फेसबुक पेज पर लिखा है कि बाबू जगदेव प्रसाद बिहार के लेनिन थे, मेरा जो सोच है वो ये है कि जगदेव प्रसाद सिर्फ लेनिन नहीं थे, जगदेव प्रसाद मार्क्स और लेनिन दोनों थे। मार्क्स ने मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया और लेनिन ने उसे लागू किया, लेकिन मार्क्स जीते जिंदगी किसी भी देश में अपने सिद्धांत को लागू होते हुए अपनी आंखों से मार्क्स ने नहीं देखा। मार्क्स गुजर गए, लेकिन किसी देश में मार्क्सवाद को लागू होते हुए मार्क्स ने नहीं देखा, क्योंकि लेनिन ने लागू किया। लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद ने पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक क्षेत्र में सोचितवाद का सिद्धांत दिया और बीते जिंदगी अपनी आंखों के सामने बिहार में लागू किया और बिहार में
पहली बार शोषित समाज का पहला मुख्यमंत्री बना सतीश कुमार सिन्हा। ये बिहार के पहले शोषित मुख्यमंत्री हुए। इसके बाद बीपी मंडल हुए। जगदेव प्रसाद ने जो शोषित बात के सिद्धांत को बिहार में लागू किया, वो आज तक लालू प्रसाद से होते हुए नीतीश कुमार तक वो परंपरा चली आ रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि जगदेव प्रसाद लेनिन नहीं बल्कि मार्क्स और लेनिन दोनों थे। उन्होंने सिद्धांत भी दिए और उसको लागू भी किए। हमारे देश में संतोष जी हैं और आप लोग दोनों आदमी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। पॉलिटिकल साइंस में गांधीवाद पढ़ाया जाता है, लोहियावाद पढ़ाया जाता है, समाजवाद पढ़ाया जाता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जगदेव प्रसाद के शोषितवाद को नहीं पढ़ाया जाता है। इसको पढ़ाए जाने की जरूरत है। पूरे आजाद भारत में बाबू जगदेव प्रसाद का पॉलिटिकल विजन जितना साफ था शायद किसी पॉलिटिशियन का नहीं था। जिन्होंने ये नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। भारत की 90% आबादी, 90% आबादी शोषित है और 10% लोग भारत के शोषक हैं। इसलिए इस 90% आबादी को हर क्षेत्र में, धन में, धरती में, राजपाट में हिस्सेदारी चाहिए। देव प्रसाद ने अपना एक दल बनाया था जिसका नाम था शोषित दल। 1967 ईस्वी में। बाद में इस पार्टी का नाम शोषित समाज दल हुआ। 1972 में जगदेव प्रसाद का शोषित दल और उत्तर प्रदेश के माननीय राम स्वरूप वर्मा की पॉलिटिकल पार्टी समाज दल, दोनों का विलय हुआ। तब बना शोषित समाज दल। शोषित समाज दल का सिद्धांत था कि शोषित समाज दल के किसी भी पद पर ऊंची जाति के लोग नहीं होंगे। यह मादा आजादी के बाद भारत के किसी पार्टी में नहीं है, नहीं किसी पार्टी के सिद्धांत में है। जगदेव प्रसाद ने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी वह शोषित लोगों के लिए बनाई थी। इसलिए शोषित समाज पार्टी में कोई भी पद ऊंची जाति के लोगों को, शोषकों को देने की मनाही थी। इसलिए इतनी स्पष्ट अवधारणा पूरे भारत में किसी पार्टी की है? पूरे आजादी के बाद शोषित शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल बाबू जगदेव प्रसाद ने किया है। उनके भाषण के हर लाइन में उनकी जबान पर हमेशा शोषित रहता था। शोषित क्रांति के जनक इसीलिए बाबू जगदेव प्रसाद को कहा जाता है। उनकी पार्टी का नाम शोषित समाज दल। उनके झंडा में शोषित 90%, उनका जो गान था उसमें शोषित,
उनके जगह जगह पर आप देखिएगा, हर जगह कोशिश से सबसे कटा हुआ देवबाबू का पूरा पॉलिटिकल पार्टी, पूरा उसका सिद्धांत, पूरा उसका सिद्धांत वक्तव्य। मैं कहता हूं कि जब देवबाबू भारत के एक बड़े सिद्धांत, इनके सिद्धांतों को राजनीतिक क्षेत्र में लाया जाना चाहिए। आप लोगों का मैं पेज देख रहा था, इसका नाम है सत्यशोधक का नाम है। इसी नाम से संस्था बनाई थी ज्योतिबा फुले ने, सत्यशोधक। तब इंडियन हिस्ट्री को आप देख लीजिए। Sorry, please check the audio. कितने आंदोलन हुए। Audio is not clear, please. Sorry. Sir, Rajendra Prasad sir, please check your audio. Voice is not clear. Please. You unmute, Chandra. Unmute yourself. And आवाज जा रही है? हेलो, आवाज ना आ रही सर। आवाज जा रही है? Now it is okay, sir. Please continue. आवाज क्लियर नहीं है, बीच बीच में अटक रही है, अनम्यूट करके वापस म्यूट करें। Voice is not clear, please. Voice is not clear. So is rearranging. Please wait for 2 minutes. हेलो, Yeah, please, sir. हेलो। Yeah. तो मैंने कहा कि आप लोगों ने जो अपने पेज का नाम रखा है सत्यशोधक, बहुत सोच विचार कर रखा है। ये ज्योतिराव फुले ने अपनी संस्था का नाम सत्यशोधक रखा था। तब उस दौर में बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, वेद समाज की स्थापना हुई थी। वेद समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, एक किस और संकेत करते हैं? ज्योतिराव फुले का तो यही आरोप था कि आप ब्रह्म समाज, वेद समाज, आत्मा समाज, प्रार्थना समाज ये बनाकर क्या कर रहे हैं? कौन सा समाज सुधार आंदोलन कर रहे हैं? इसीलिए ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज बनाया था। और उस फुले के सत्यशोधक समाज को भारत के इतिहासकारों ने नोटिस नहीं लिया। फुले की मृत्यु के 37 साल बाद पीएस पाटिल ने 1927 ईस्वी में ज्योतिराव फुले की जीवनी लिखी थी। 37 साल बाद उनकी मृत्यु हुई। और अंग्रेजी में जीवनी आई 1964 में धनंजय ने लिखी। फुले को तो फुले की चर्चा हुई 90 से फुले
Voice is not clear, please. Yeah. So I requested Rajendra Prasad sir to use the earphones so that we will get more clarity. So he's doing that. So please wait for 2 minutes because some network problem is also there. I also request others to unmute, please, because your voice is also sometimes disturbance. Sorry, mute yourself. Dr. Your voice is not clear. Sorry, Santosh. Please unmute and speak, Dr. Chandra. चालू कीजिए। हेलो, Sir, please. आवाज आ रही है? Please continue your lecture, sir. आवाज जा रही है, साफ है? Yes. हाँ आ रही है। हेलो, साउंड इज क्लियर? Sound is clear. Yes. अच्छा, Please continue. अच्छा। Now it is okay. पहले जो बात कहे उसको दोबारा कहना पड़ेगा? Please, main important points. बोलिए, दोबारा बोलिए। अच्छा, ओके ओके। मैं ये कह रहा था कि आप लोग जानते हैं कि जगदेव प्रसाद को बिहार का लेनिन कहा जाता है। मेरा कहना यह है कि जगदेव प्रसाद, बाबू जगदेव प्रसाद बिहार के सिर्फ लेनिन नहीं बल्कि मार्क्स और लेनिन दोनों थे। मार्क्स ने मार्क्सवाद का थ्योरी दिया, लेकिन उसको लागू किया लेनिन ने रशिया में पहली बार। लेकिन जगदेव प्रसाद ने शोषितवाद का थ्योरी दिया और जगदेव प्रसाद ने ही उसको शोषितवाद के थ्योरी को बिहार में लागू भी किया।
इसलिए मैं कहता हूं कि जगदेव बाबू मार्क्स और लेनिन दोनों थे। उन्होंने सिद्धांत भी दिए और उस सिद्धांत को उन्होंने लागू भी कर दिया। ये फर्क है। मार्क्स ने तो अपने जीते जिंदगी अपने सिद्धांत को लागू करते हुए किसी देश में देखा ही नहीं। वो तो गुजर गए मार्क्स। उनकी मृत्यु के बाद लेनिन ने लागू किया मार्क्सवाद को, कम्युनिज्म को। लेकिन जगदेव बाबू ने शोषितवाद का सिद्धांत दिया और जीते जिंदगी उन्होंने बिहार में लागू कर दिया। और बिहार का पहला मुख्यमंत्री जगदेव बाबू ने शोषित समाज के सतीश प्रसाद सिन्हा को बनाया। वो बिहार के पहले शोषित मुख्यमंत्री हैं, सतीश प्रसाद सिन्हा। तो बाबू जगदेव प्रसाद की देन थे। इसके बाद बीपी मंडल हुए, कर्पूरी ठाकुर हुए, लालू प्रसाद यादव हुए, नीतीश कुमार हुए। एक जगदेव प्रसाद ने जो धारा चलाई मुख्यमंत्री बनाने के, शोषित समाज, शोषित आबादी से, वो जगदेव बाबू की देन है। उसके पहले जितने मुख्यमंत्री हुए जगदेव बाबू से पहले, वे सभी के सभी ऊंची जाति के लोग थे। यह जगदेव बाबू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जगदेव बाबू दोनों थे, मार्क्स और लेनिन दोनों थे। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में मैं कह रहा हूं कि लोहियावाद को आप पढ़ाते हो, गांधीवाद पढ़ाते हो, लेकिन शोषितवाद का सिद्धांत जो जगदेव बाबू ने दिया उसको पॉलिटिकल साइंस में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? आपका पॉलिटिकल साइंस डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इसलिए शोषितवाद के सिद्धांत को पॉलिटिकल साइंस में आज भी विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता है। जगदेव बाबू शोषित क्रांति के जनक थे। शोषित क्रांति, आजादी के बाद जगदेव बाबू ने शोषित शब्द का जितना इस्तेमाल किया उतना इस्तेमाल किसी राजनेता ने नहीं किया। उनके भाषण के हर लाइन में, उनकी जुबान पर शोषित शब्द बार बार आता था। उनकी पार्टी का नाम भी है शोषित समाज दल। उनकी पार्टी का नाम, उनका झंडा का नाम, उनका पूरा सिद्धांत, वक्तव्य सब शोषित पर आधारित था। इतना ही नहीं, शोषित समाज पार्टी में ऊंची जाति के लोगों को कोई पदाधिकारी बनाने का कंसेप्ट नहीं था। कोई भी शोषक वर्ग का आदमी उनकी पार्टी में अधिकारी पदाधिकारी नहीं बन सकता था। एकदम क्लियर विभाजन रेखा उन्होंने खींची थी कि भारत में 90% जो जनता है, 90% जो जनता है वह शोषित है। 10% जनता जो है वह शोषक है। शोषक शोषित की उन्होंने स्पष्ट लाइन खींची थी और उनका मानना था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। भारत की सैकड़े 90% लोग शोषित हैं और इनको भागीदारी मिलनी चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, धन में, धरती में, राजपाट में, हुकूमत में, सब में। जगदेव बाबू का बहुत विराट कंसेप्ट था राष्ट्र निर्माण का। यहां हम अभी सुमित सरकार की किताब पढ़ रहे थे, आधुनिक भारत का इतिहास। सुमित सरकार ने उसको अंग्रेजी में उस पुस्तक को लिखी है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन राजकमल से उस किताब की आई है। तो उसमें हमने देखा कि आधुनिक भारत के इतिहास में उन्होंने जातिगत आंदोलन शीर्षक डाली है 2-3 जगह, और उसी जातिगत आंदोलन के दायरे में उन्होंने पेरियार को रखा है, फूले को रखा है, नारायण गुरु को रखा है। आप सोच सकते हैं कि जो लोग जाति का विरोध किए
उन्हीं को इतिहासकारों ने जातिगत आंदोलन बता दिया। ये उल्टा है, ये गलत है। पूरे इतिहासकारों की दृष्टि मोतियाबिंद लगी हुई कि जिन लोगों ने जाति का विरोध किया उसी को आप कहते हैं कि यही जातिवादी है। जाति का विरोध फूले ने किया, जाति का विरोध पेरियार ने किया, जाति का विरोध रामस्वरूप वर्मा ने किया, जाति का विरोध बाबू जगदेव प्रसाद ने किया, और इन्हीं लीडर को आप कहते हैं कि ये लोग जातिगत आंदोलन चलाए। उल्टा है। यही लोग भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन चलाए। पहले तो हमारे यहां यही समझ नहीं है कि देश और राष्ट्र में फर्क क्या है। मेरे भाई, देश को अंग्रेजी में कंट्री बोला जाता है और राष्ट्र को अंग्रेजी में नेशन कहा जाता है। ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यही अभी समझ नहीं है इंडिया में कि राष्ट्र और देश है क्या। देश क्या है? देश भूगोलवाची है, उसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। आसमान में चले जाइए हवाई जहाज से, देश को देख लीजिए, लेकिन राष्ट्र को आप नहीं देख सकते हैं, नेशन को नहीं देख सकते हैं। नेशन जो है वो अमूर्त चीज है, वो हृदय की भावना है, आपसी तालमेल है, भाईचारा है, समानता है। वो राष्ट्र है, नेशन है। देश आप जबरदस्ती बना सकते हैं, पुलिस से, फौज से, कर्फ्यू से, ईडी से, सीबीआई लगा कर आप देश बना सकते हैं। बूटों से कुचलकर, संगीन की नोक पर आप देश बना सकते हैं, मारपीट कर, लाठी से, डंडा से, गोली चलाकर। लेकिन आप राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। राष्ट्र हृदय से बनता है, और राष्ट्र तब बनता है जब आपके बीच सामाजिक आर्थिक इक्वालिटी हो, सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी। इसके राष्ट्र बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। आप एग्जाम्पल लीजिए कि अमेरिका की भाषा इंग्लिश है, इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश है। इंग्लैंड में क्रिश्चियन लोग रहते हैं, अमेरिका में भी क्रिश्चियन लोग रहते हैं। वहां भी श्वेत प्रजाति के लोग हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में भी श्वेत प्रजाति के लोग हैं। लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग राष्ट्र हैं। क्यों हैं? अमेरिका और इंग्लैंड में जब एक ही नस्ल के लोग रहते हैं, एक ही भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, एक ही धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, तो फिर इंग्लैंड और अमेरिका एक ही राष्ट्र क्यों नहीं हो जा रहा है? नहीं होगा। राष्ट्र का निर्माण, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाषा, जाति और धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है। आप स्विट्जरलैंड को देख लीजिए। स्विट्जरलैंड में 3 जातियां हैं, जर्मन लोग हैं, फ्रेंच लोग हैं, इटालियन लोग हैं। स्विट्जरलैंड में 3 हिस्सों में बटा हुआ है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में 3 नेशनल लैंग्वेज है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है। बावजूद इसके स्विट्जरलैंड नेशन है। तो नेशन बनता किस चीज से है? नेशन बनता तब बनेगा जब भारत की या किसी भी देश की जनता की सामाजिक और आर्थिक समानता जिसमें हो, तब राष्ट्र बनता है। ऐसे हवाई राष्ट्र नहीं बनेगा। क्योंकि एक देश में रहते हुए भी अगर आदमी आदमी के बीच में फासला है, दूरी है, छुआछूत है, तो एक आदमी इधर जाएगा, पश्चिम जाएगा, दूसरा आदमी पूरब जाएगा। आदमी आदमी के बीच में इकोनॉमिकल फासला है, जमीन आसमान का फासला है। कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत धनी है, तो दोनों के स्वार्थ अलग अलग हैं, तो दोनों में टेंशन रहेगा। आपका राष्ट्र बनेगा कैसे? इसलिए मैं कहता हूं कि राष्ट्र बनने के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए आपको सोशल और इकोनॉमिकल इक्वालिटी बेहद जरूरी है। इसेंशियल पॉइंट है। इसके बगैर कोई राष्ट्र नहीं बन सकता है। आप जबरदस्ती उसको देश बना सकते हैं, राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। जगदेव बाबू ने जो कहा कि 90% लोग यहाँ के शोषित हैं, भाई मार्क्स के जो
सर्वहारा है, वह केवल गरीबी की मार झेल रहा है। मार्क्स का जो मजदूर है, जो सर्वहारा है, वह सिर्फ गरीबी की मार झेल रहा है, इज्जत की मार नहीं झेल रहा है। छुआछूत का रोग वहां नहीं है यूरोपियन कंट्री में, लेकिन जगदेव बाबू का जो शोषित है वह दोहरा मार खा रहा है। एक तो आर्थिक दृष्टिकोण से वह शोषित है, दूसरा सामाजिक दृष्टिकोण से सोशली वह अछूत है। जगदेव बाबू की लड़ाई मार्क्स से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इसीलिए जगदेव बाबू कहते थे कि मार्क्सवाद वर्ग में वर्ग संघर्ष है, लेकिन भारत में वर्ग संघर्ष नहीं है, भारत में वर्ण संघर्ष है, कास्ट स्ट्रगल है, नॉट क्लास स्ट्रगल। इंडिया ऐसा देश है। तो जगदेव बाबू की जो राह थी वो ज्यादा कठिन थी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सुमित सरकार ने अपनी किताब में जगदेव ये फूले और पेरियार जैसे राष्ट्रवादी नेताओं को जातिगत आंदोलन के खाते में रखा। ये लोग जातिगत आंदोलन चलाए। अरे भाई, वो लोग राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे, आप किस आधार पर कर रहे हैं कि जातिगत आंदोलन चलाए? मतलब कि अभी तक इतिहासकारों को राष्ट्रवाद का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। वो तो जितने लोग थे, मार्जिन पीपुल थे, सबको मेन स्ट्रीम में ला करके वो लोग राष्ट्र बना रहे थे। और आप कहते हैं, छापा मारते हैं उस पर कि ये लोग कास्ट मूवमेंट चला रहे हैं। नहीं, कास्ट मूवमेंट भाई आप चला रहे हैं। जब ज्योतिराव फूले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, तब ये लोग कौन सा समाज बना रहे थे? तब राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज बना रहे थे, कोई वेद समाज बना रहा था, कोई आर्य समाज बना रहा था, कोई प्रार्थना समाज बना रहा। एक वेद, आर्य, प्रार्थना, तुम कौन सा समाज बना रहे हो? ज्योतिराव फूले इसीलिए कहते थे कि आप समाज सुधार के नाम पर ब्राह्मणवाद को प्रमोट कर रहे हैं, आर्य समाज बना रहे हैं, वेद समाज बना रहे हैं, ब्रह्म समाज बना रहे हैं। अब ब्रह्म से जो बाहर हैं वो कहां जाएंगे? जो वेद से बाहर हैं वो कहां जाएंगे? जो आर्य जातियों से बाहर हैं वो कहां जाएंगे? तो अब क्यों आर्य समाज बना रहे हैं, वेद समाज बना रहे हैं, ब्रह्म समाज बना रहे हैं? तो उससे बेहतर समाज की स्थापना तो फूले ने की थी, सत्यशोधक समाज। सत्य तो सबके लिए सत्य है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्धिस्ट हो। अच्छा किया आप लोगों ने, मैं तो कह रहा हूं कि आप लोगों ने सत्यशोधक पेज बनाई है, अच्छा नाम दिया है, इसके लिए हम आप लोगों को बधाई देना चाहते हैं। फूले इतना बड़ा निर्माण के लिए, लेकिन इतिहासकारों ने हिंदी बेल्ट में उन्हें छोड़ ही दिया। ज्योतिराव फूले की मृत्यु हुई 1990 में। उनकी पहली जीवनी पीएस पाटिल ने उनके मृत्यु के 37 साल बाद लिखी मराठी भाषा में। तब मराठी भाषी लोग उनके बारे में जाने डिटेल में। अंग्रेजी में ज्योतिराव फूले की जीवनी 1964 में लिखी गई थी, धनंजय कीर ने लिखी। अब जोड़ लीजिए 90, 10, 64, 74 साल बाद फूले के मृत्यु के डेथ होने के 74 इयर्स बाद इंग्लिश में जीवनी लिखी गई। किनकी? ज्योतिराव फूले की। और हिंदी बेल्ट में फूले को कोई जानता नहीं था, क्योंकि हिस्ट्री के पेज में ये दफन हो गए थे। पूरी तरह से मैं होशो हवास में यह बात कह रहा हूं कि हिंदी में फूले की पहली जीवनी 1989 में लिखी गई। 1990 के बाद फूले को हिंदी बेल्ट ने पहचाना, और 1990 फूले के जीवनी कई लोगों ने लिखी, लेकिन उसके पहले फूले को कोई नहीं जानता था। तो फूले को जानने में 1890 में फूले मरे, 1990 में
उत्तर भारत के लोग फूले को जाने 100 साल लगा, 100 साल, 100 years फूले को जानने में उत्तरी भारत के लोगों को। आप सोच सकते हैं यह कहां से गलती हुई, यह इतिहासकारों द्वारा गलती हुई। जगदेव बाबू को तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। कारण कि जगदेव बाबू को हिंदी बेल्ट में ही जानने में समय लगा। 1974 में जगदेव बाबू मारे गए कुर्था ब्लॉक में सत्याग्रह करते हुए। गोलियों से उन्हें भून दिया गया। वह जगदेव बाबू जो 3 बार कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर रह चुके थे, जिसको पुलिस सलामी दागती थी, उसी पुलिस ने अपनी गोली से जगदेव बाबू को उड़ा दिया। यह बहुत हिंसक परंपरा चली। तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जगदेव बाबू को गोली मारी गई। एक कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर को जो 3 बार रहा, जो सीएम का किंग मेकर था बिहार का, कितने सीएम बनाए और बिगाड़े जगदेव बाबू ने। ऐसे आदमी को पुलिस ने दिन दहाड़े गोली मारी 3 बजे के आसपास, और उसकी मुकम्मल जांच तक नहीं हुई कि किसने मारी, क्यों मारी, नहीं उसमें किसी का पनिशमेंट हुआ। ये बहुत गलत परंपरा थी। इंदिरा गांधी चुप रही और अंततोगत्वा इंदिरा गांधी भी इसी हिंसा की शिकार हुई। होना ही है। आप कानून बनाते हैं तो केवल अपने मन के हिसाब से मत थोपिए, क्योंकि जिस दिन आप सत्ता से बाहर जाइएगा वही कानून आपको गलत ढंग से वही फिर आपको जेल में ले जाएगा। तो जगदेव बाबू मारे गए। जगदेव बाबू सत्याग्रह कर रहे थे, रिटन है, लिखित है, सत्याग्रह कर रहे थे। पुलिस ने क्यों गोली चलाई? क्या कुर्था ब्लॉक जल गया? उसका कोई प्रमाण है हमारे बिहार के हिस्ट्री के दस्तावेज में? कितने पुलिस जख्मी हुए थे 1974 में 5 सितंबर को? इसका कोई रिकॉर्ड है? उनकी 100 यात्रा में कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, कहां कुर्था ब्लॉक में आग लगी है? ये सरकार झूठी नंबर 1 है। कहां गोलीबारी हुई थी? सारे लोग शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे। तो फिर जगदेव बाबू को गोली आपने क्यों मारी? कौन सा हिंसक आंदोलन चला रहे थे? जगदेव बाबू जिस सत्याग्रह में मारे गए उसी समय तो जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति चल रही थी पूरे बिहार, पूरे देश में संपूर्ण क्रांति चल रही थी जेपी की। एक जेपी थे जयप्रकाश, दूसरे जेपी थे जगदेव प्रसाद। ये दोनों जेपी ही थे, जगदेव प्रसाद भी और जयप्रकाश भी। दोनों का आंदोलन 1974 में शुरू हुआ। 1975 जेपी मूवमेंट और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन और जगदेव प्रसाद का आंदोलन, दोनों बिहार की धरती से, दोनों 1974 में। लेकिन एक जेपी को हमने क्या किया? अस्वस्थ होते हुए भी उनको बचाए रखा। लेकिन दूसरे जेपी को, जगदेव प्रसाद को स्वस्थ रहते हुए भी हम लोगों ने गोलियों से भून दिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो आंदोलन है उसका अलग अलग कैरेक्टर है। गांधी को हमने गोली मार दी, विनोबा को बचाए रखा, जयप्रकाश नारायण को बचाए रखा, देव प्रसाद को हमने गोली मार दी।
इससे आपके आंदोलन का कैरेक्टर क्लियर होता है। तो जगदेव बाबू 1974 में मारे गए और उसके करीब 25 साल बाद जगदेव बाबू की पहली जीवनी लिखी गई हिंदी में। ये है, दिखाई पड़ रहा है ना, ये जगदेव बाबू की पहली जीवनी है, 1999 में लिखी गई। उनकी मृत्यु के 25 साल बाद हिंदी में अशोक कुमार सिन्हा ने इसे लिखी, कीर्त्या पब्लिकेशन ने इसे प्रकाशित किया है। दूसरी जीवनी शहीद जगदेव प्रसाद का सजदानंद श्याम ने लिखी, आप देख पा रहे हैं। सजदानंद श्याम ने बाबू जगदेव प्रसाद की दूसरी जीवनी लिखी है, ये 2004 ईस्वी में। ये सजदानंद जो श्याम थे, ये जगदेव बाबू के साथ हाई स्कूल में पढ़ाते थे। वो हाई स्कूल परैया में था, गया जिले के, और जगदेव बाबू उस स्कूल के हेडमास्टर थे। और ये जो लेखक थे सजदानंद श्याम, ये उन्हीं के स्कूल में टीचर थे और जगदेव बाबू हेडमास्टर थे। मीटिंग हुई थी परैया में कि इस हाई स्कूल का नाम क्या रखा जाए। तो जगदेव बाबू ने प्रस्तावित किया था कि इस हाई स्कूल का नाम सम्राट अशोक के नाम पर रखा है, और उस हाई स्कूल का नाम अशोक हाई स्कूल रखा गया। अशोक के नाम पर पेरियार लाल सिंह यादव, जिसे उत्तर भारत का पेरियार कहा जाता है, उन्होंने अशोक लाइब्रेरी खोली, और बाबू जगदेव प्रसाद ने सम्राट अशोक के नाम पर में हाई स्कूल बनाए थे, जिसमें हेडमास्टर थे। गौतम बुद्ध ने सिद्धांत दिया पहली बार बहुजन का सिद्धांत टेक्स्ट में, लिटरेचर में पहली बार इस शब्द का प्रयोग गौतम बुद्ध किया, और शिलालेखों में बहुजन पहला इस्तेमाल सम्राट अशोक किया। यही बहुजन जगदेव प्रसाद के शोषित हैं, यही बहुजन राम स्वरूप वर्मा के अर्जक हैं, यही है। बाद में एक किताब फिर संपादित हुई, शहीद का संग्राम, साहित्य संसद से अशोक कुमार सिन्हा ने इसे प्रकाशित कराया। ये जगदेव बाबू के जो लड़के थे हैं नागमणि, उन्हीं के ये सेक्रेटरी थे। और जगदेव बाबू की एक बहुत मोटी किताब मैंने लिखी, पतली का अंगमय जो समर प्रकाशन से छपी हुई है। जगदेव बाबू ने अपने जीवन में जो भाषण किया और जितने भाषण उनके उपलब्ध हो सके, ये इसी में है, जिनका प्रमुख नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू कहा करते थे, उनकी एक लाइन काफी है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। यह एक लाइन ही पूरे 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 उनके राजनीतिक दर्शन को, पूरे उनके सामाजिक दर्शन को ओपन कर देता है। जगदेव बाबू केवल पॉलिटिकल करेक्टर नहीं थे, पॉलिटिशियन केवल नहीं थे, वो सोशल रिफॉर्मर भी थे, समाज सुधारक भी थे। उन्होंने राम स्वरूप वर्मा के साथ मिलकर करके अर्जक संघ की स्थापना की थी। अर्जक संघ का आप पता नहीं सिद्धांत आप लोग तमिलनाडु में, कर्नाटक में पढ़ पाए हैं कि नहीं, पढ़ना चाहिए। अद्भुत अद्भुत है अर्जक संघ, उसकी पूरी प्रणाली, उसका पूरा प्रोसेस, उसका पूरा सिस्टम अलग है। हर संस्कार, पर्व, त्योहार सब
1968 में माननीय राम स्वरूपा से मिलकर के बाबू जगदेव प्रसाद ने अर्जक संघ की स्थापना की थी। मैं तो कहता हूं कि राजनीतिक गुलामी 2-4 पीढ़ी की होती है, और राजनीतिक गुलामी में आपका केवल शरीर गुलाम होता है, आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, वो फ्री होता है। लेकिन सांस्कृतिक गुलामी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, सैकड़ों साल चलेगी, हजारों साल चलेगी, और सांस्कृतिक गुलामी आपके दिल और दिमाग पर ऐसी छा जाती है कि अपने हाथों में हथकड़ी आप खुद लगा लेते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि मैं अपने हाथों से खुद अपने हाथों में ही हथकड़ी पहना रहा हूं। जगदेव बाबू इसको समझते थे, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन चलाया राम स्वरूप वर्मा के साथ मिलकर, जिसका नाम है अर्जक संघ। अर्जक संघ में बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए। खुद राम स्वरूप वर्मा ने कई जन किताबें लिखी है। चौधरी महाराज सिंह की कई दर्जन किताबें हैं, आप उनको पढ़िए, आपकी आंखें खुली खुली रह जाएगी। 60 के दशक में जो लिटरेचर में जो मूवमेंट खड़ा हुआ भारत में, भूतो न भविष्य, अद्भुत लेख है। लेकिन उस लिटरेचर को हिंदी साहित्य के हिस्ट्री में जगह ही नहीं मिली। कैसा देश आपका भाई, जो कहता है कि आदमी के बीच का फासला मिट चाहिए, एक आदमी दूसरे आदमी को अछूत मत समझे, और अस्पताल की ये जो अमीरी गरीबी है, इसकी खाई को पी जानी चाहिए। ऐसे लीडर को, ऐसे चिन्ह को आप कहते हैं कि जातिवादी है, और जितने प्रच्छन्न रूप से जाति हैं उसे आप कहें कि राष्ट्रवादी हैं। उल्टा है। इस चीज को हमको जानना चाहिए। जगदेव बाबू बड़े सतर्क थे, और एक एक लाइन उन्होंने बोला है वो काफी महत्वपूर्ण है। जगदेव बाबू ने कहा है कि मैं जिसके लिए बोलता हूं, वे गूंगे और बहरे हैं, और मैं जिसके नहीं बोलता हूं वो इतने चालाक और चुस्त हैं कि वही मेरी बात को समझ लेते हैं और काट तैयार कर ले हैं, और फिर ईश्वर का चक्र चलने लगता है, फिर शोषी रह जाता है, वो काट तैयार लेता है। आप यही पर्दाफाश कीजिएगा कि भाई ये जितना जगदेव बाबू कहा करते कि जितना ये सब कुलकांड, ढोंग ढसला, पाखंड है, ये पूजा आडंबर, दिमाग शार्प है, वो नए प्रकार। आज जब तक चिंतक उसको पकड़ बताता है जनता के बीच कि भाई ये तो शोषण का औजार है, इससे दूर रहो, तब तक शोषण पे नया टेक्नोलॉजी ला देता है। इसलिए आपको जागना होगा। जब तक आप जगिएगा नहीं, तब तक ये शोषण का चक्र नहीं रुकेगा। जगदेव बाबू 5 बार इलेक्शन लड़े थे और 2 बार चुनाव उन्होंने जीता था, और 3 बार वे मिनिस्टर हुए थे। हर बार वो चॉइस करते थे इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी। वो जानते थे कि इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी यही 2 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसको हमें रखना चाहिए। इसी के बलबूते हम किसानों का उद्धार कर सकते हैं। जगदेव बाबू जब 5 सितंबर 1974 को मारे गए तो उनकी मांग क्या थी? उनकी एक प्रमुख मांग यह भी थी उसमें कि अंबेडकर साहित्य को विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में रखा जाए, हर विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाए। जो आज तक भी लोग पढ़ाने में हिचकते हैं, यह मांग जगदेव बाबू ने किया था।
जगदेव बाबू डॉक्टर अंबेडकर को पूरी तरह से समझे थे। तो मैं समझता हूं कि काफी कुछ बोल दिए, लेकिन थोड़ा सा परिचय बता देता हूं जगदेव बाबू का। जगदेव बाबू का जन्म 1922 में हुआ था। उस समय गया डिस्ट्रिक्ट था जहां बुद्ध को ज्ञान मिला था। उसी जिले में जगदेव बाबू का जन्म हुआ था। 1922 में तब 9,500 लैंडलॉर्ड जमींदार थे केवल गया डिस्ट्रिक्ट में, 9,500, और उसके खिलाफ जगदेव बाबू लड़ रहे थे। सोच लीजिए, अभी जगदेव बाबू का जो गांव है, उनके गांव का नाम है कुरहारी। जगदेव बाबू जिस गांव में जन्मे थे उस गांव का नाम है कुरहारी, और यह जो कुरहारी उनका गांव है वह फिलहाल जहानाबाद जिले में। और जगदेव बाबू जहां मारे गए थे कुर्था ब्लॉक पर, वो अभी अरवल जिले। जगदेव बाबू बगल के मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, वहीं पर इनके पिताजी शिक्षक थे, टीचर इनके पिताजी। मिडिल स्कूल उन्होंने फर्स्ट डिवीजन पास कर करके फिर हाई स्कूल में पढ़ने के लिए इलाहाबाद गए। हाई संख्या बड़ी कम थी उस जमाने में, बहुत दूर दूर पर एक हाई स्कूल हुआ करते थे। तो जहानाबाद में एकमात्र ही हाई स्कूल था, उसी में जगदेव बाबू ने हाई स्कूल की स्कूलिंग की। उसका नाम है भीटी हाई स्कूल। उसको भीटी हाई स्कूल की स्थापना 1916 में हुई थी, तब जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना था 1916 में। एक अंग्रेज थे सैमुअल भीटी, उन्होंने उस हाई स्कूल की स्थापना की थी। जगदेव बाबू वहीं से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी। हाई स्कूल करने के बाद जगदेव बाबू पटना यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कराए। वहीं से उन्होंने बीए और एमए की। एमए उन्होंने इकोनॉमिक्स से की, इकोनॉमिक्स में उन्होंने पीजी की थी जगदेव बाबू ने। बाद में वे सोशलिस्ट पार्टी की पत्रिका थी जनता, उसका संपादन किए। उसके बाद वे हैदराबाद गए, वहां से अंग्रेजी और हिंदी की 2 साप्ताहिक पत्रिका सर प्लीज चेक योर वॉइस। थे। इसके बाद धीरे धीरे राजनीति में आए और पहली बार उन्होंने 1957 में चुनाव लड़ा था, 1957 में। और अपनी एक साप्ताहिक अखबार निकालते थे जिसका नाम था शोषित। उनके अखबार नाम भी शोषित था। उसके जो संपादक थे वो थे बाबू जयराम प्रसाद। बाबू जयराम प्रसाद सिंह मेरे काफी नजदीकी थे, वहीं उसके संपादक थे। 1968 से वो निकलना वो साहित्य शुरू हुआ था। उसी में जगदेव बाबू जितना बोले थे, जो उनका सिद्धांत था, वो सब उसी बार में था। संजोग हमको पूरे उनके जो साप्ताहिक जो वो पत्रिका थी उनकी शोषित की फाइल मिल गई। उसी के आधार पर हमने जगदेव का पूरा वाङ्मय का संपादन किया था। तो मैं समझता हूं कि मोटा मोटी आप जगदेव बाबू के बारे में जान गए होंगे। फिर कभी हम लोगों की बातचीत होगी तो इस पर हम विशेष प्रकाश लेंगे। अभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। So thank you sir, thank you very much. It was really insightful. You brought
Yeah. Sir, thank you very much. We will take questions and answers after 10 minutes. After Santosh will summarize for the other audience who are attending from different states, from Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and different states. For them, just Santosh will summarize your main points in your presentation. Then we will take question answers. Sir, I request you to be there for question answer session. Now I invite Santosh to start his summary of the presentation. Santosh. Yeah, thank you so much, Dr. Chandraya and Satyashodak, the Foundation for Research and Publication. And I'm very happy to participate in this very historical lecture of Professor Rajendra Prasad Singh ji. He's discussed about various aspects which are very important at this point of time to discuss and understand the current context of Indian politics. About the revolutionary Babu Jagdev Prasad ji, and he started with raising the voice and rightly questioned about the discriminatory aspects of both historians and political scientists of this country. I agree with him that why can't we use the departments of political science and historians rightly describe and explain and teach about the anti-caste radicals such as Babu Jagdev Prasad in the Indian universities. So let me start with Babu Jagdev Prasad ji. Like he was the instrumental in the political revolution in the state of Bihar by the concept of the backward exploited, which Professor Rajendra Prasad terms it as like nothing less than the theory proposed by Karl Marx, and it has realized by Lenin. Therefore, he rightly says that Babu Jagdev Prasad should be considered as not just Lenin of Bihar, he should be considered as Marx as well as Lenin in this country. So Babu Jagdev Prasad rightly instrumental in the Mandal Commission, and he started his own political party, the exploited Socialist Samaj Dal, exclusively for the exploited sections of this country. And he also the part of SSP led by Lohia. Later he parted ways with the Lohia and he started his own party with the Ram Sarup Verma. And he also associated with sometimes with the BSP. And his career like he was prolific writer and scholar, is rightly Rajendra Prasad ji says that he is a real revolutionary in this country, but unfortunately the historians and the political scientists have ignored him. And his prolific writings have evidence in the journals and weeklies, like he was very much actively written and is part of, and he was the editor of like SSP's journal called Janata. And as well as in the early career, he moved to Hyderabad, from Patna to Hyderabad, and he edited one English weekly called Citizen and one Hindi journal called Uday. That it was very radical because of his radical stand. The people who opposed him and threatened him, then he shifted to Patna. And later on in his career, he never stopped his writing. At the end of his, almost his end of his career, in between, he started the weekly called Shoshit, where Rajendra Prasad ji have drawn his sources for his the book on Babu Jagdev Prasad, that is his writings and speeches. In Hindi, we'll call Babu Jagdev Prasad Vangmay. And he broadly, Rajendra Prasad ji has raised two broader issues about the political revolution in this country by using the concepts called the exploited versus the exploited.
the Savarn versus the backward, and where we included both the Dalits as well as backward communities, where he was like started his revolution, where he was instrumental in like making first backward community chief ministers in the state of Bihar, where this tradition is still continuing from this Ram Prasad Verma to Lalu Prasad Yadav to Nitish Kumar now the present time. And when is the Social Samaj Dal is when he was initiated, his ideology was basically, and his slogans were that exploited should rule this country, not the Savarn. So therefore, his slogan, very interesting slogans at this where I have come across that in own town, there are slogans I have written in the walls of the various households. Like that is, let me read out this: 90 out of 100 are exploited. 90 parts are ours in wealth and land and government and administration. 90 parts are ours. Rule of 10 over 90 will not continue. Broadly, there are two points he wanted. One is the respect and food for the lower communities. So entire his theory about and his practice about his ideology is to take up the share of this 90%. 90% are exploited in this country. Therefore, they should get the power, political power, land resources, and administration, and etc. etc. And then Rajendra Prasad ji, and in drawing the line between the anti-caste intellectuals in this country from Phule onwards to present day to Babu Jagdev Prasad ji, where this he says that the so-called social reform movement, social reformers in this country, like he was like in opposing with their ideology, and at the time of when Phule was raising the voice and he was establishing Satyasodhak Samaj, the people, the so-called social reformers, they were establishing Brahma Samaj, Pratana Samaj, etc., etc. But the historians in this country, is rightly pointed out, Sumit Sarkar and etc. So they says that these Phule, Periyar, and present Babasaheb Ambedkar and Babu Jagdev Prasad ji, this is a tradition where they oppose the caste. Not they are their movements should not be considered as caste movements, but unfortunately, the historian says that this is a caste movements. So therefore, he is raising the question that why you are like saying that the people who are mainstreaming the therefore this should be challenged thoroughly. And then he come to the concepts of nation building, how the Jagdev Prasad ji has contributed to the concept of nation building, and he rightly questions that historians in this country, as well as political scientists, have ignored and they are not understood what is nation and how to build the nation. Therefore, we need to understand what is nation and the state. So he says that by force, by police or military, you can construct a state, but you cannot construct a nation. Nation is a feeling. Nation should be ensuring equality, socio-economic and political equality and brotherhood among the exploited. But the people, the historian says that never understood this process of nation building. But the anti-caste intellectuals from Phule onwards to till Babasaheb Ambedkar and Jagdev Prasad ji and others, they are trying and to make the real nation building process by educating the exploited. Therefore, their ideology is not just about raising the voice for the exploited social groups. They are also was raising the voice against the economic exploitation. So therefore, the real social reformers and the nation builders should be these anti-caste
social reformers such as Pule should be considered like that. But because of this ignorance of the so-called historians, mainstream historians in this country, these scholars have been not reached to the people, the masses, the exploited. Notably, the Indie Belt, he rightly says, the Rajendra Prasad, he rightly saying that Indie Belt has ignored Pule and his writings. The reason is, he says, and he accuses the historian. Who is the reason for this? Why the people are not known Pule after his death of almost 100 years of his death? Pule never come to know in the Belt. So the fault lies with the historians. They never taught, they never written about anything about the Pule. Therefore, the people, the exploited, should raise their, they should aware about all these things that has happened only in the 1990s. And then this is rightly pointed out that the concepts of Bahujan, where he is equating with the Jagdev Prasad ji ka, the concept of Soshit, they are the exploited. Is relating with the concept of Bahujan from Buddha to Ashoka. Then is JP, Jagdev Prasad ji's concept of Soshit. These are both are same. Therefore, what JP, Jagdev Prasad ji also started a cultural revolution to understand the concept of Bahujan and the exploited, where he was not just led economic and political movements, but he also started raising and the struggle of cultural revolution in this country, where he started various the libraries and the other centers, schools, etc., etc. And where he says that the exploited should come out from the mental and the cultural slavery. So this, unless the exploited, the 90% exploited, come out from this the mental slavery, as Pule says, and he's saying that the cultural slavery, we cannot achieve and we cannot improve our lives in this country. And where he says that this country, how this country was the bias toward this anti-caste intellectuals such as JP, Jagdev Prasad ji, when the people in Bihar in 1974 started the Sampurna Kranti movement by JP, and at the same time Jagdev Prasad ji was started Satyagraha. So to basically to tell about the biases of the state, at that time led by Indira Gandhi, that the one JP has been not touched, and our revolutionary JP, Jagdev Prasad ji, has been killed in the injured in the police firing, and despite his injuries, police had taken him to custody, and ultimately, while struggling for the equal society, at the end of the day, he 5 times elected, 3 times cabinet minister, had to give his life in the police brutality. So therefore, the state is also, in a way, this behaving in a discriminatory manner towards these intellectuals of anti-caste. At the end of the lecture, he says, lightly says that the vision of Jagdev Prasad ji was always demanded that the history of Pule, Babasaheb Ambedkar should be taught in Indian universities. He demanded that Ambedkar speeches and writings and speeches should be available in every Indian university. And he rightly says, I agree with him, that why we cannot have, we should have this chair in the name of Jagdev Prasad ji and other Shudra intellectuals, which Indian universities should teach, they include in their syllabus. So after so many years of his death, Jagdev Prasad ji, about his life, various books have come, but the main remarkable work is written by Rajendra Prasad ji, that is
Jagdev Prasad, the entire speeches and writings, which is available in Hindi. So, in a way, like to conclude that the present context that the Shudras have, in a way, like in a new, they are in new feudal structures there. So they have all these anti-caste intellectuals in the tradition, but people still, they are culturally slaves. Until unless they read, carefully understand these intellectuals from Phule to Jagdev Prasad ji. So these societies, these Shudras, never become the rulers of this country. We need to keep in mind all these aspects. I think I'll stop it here. Thank you so much. Yeah. Thank you, Santosh. You well summed up, and it's really gave a more clarity on Jagdev Prasad life struggle and his vision. Now I think now we can take questions for more clarity. I'm just looking for Rajendra Prasad Singh ji, whether he's available or not. I think I request everyone to prepare questions. Either you message or you just directly ask. I'm just asking Rajendra Prasad to rejoin. Hello. Yeah. Sujit, please ask a question. I have invoked my question to you. Can you please read it for me to? If you are able to speak Hindi, that will be more easy. No, Rajendra Prasad Singh sir, are you there? Yes. Yeah, there is a one question I am reading. It is in English. Please try to understand. The Sujit Kumar is asking, speaker mentions that Nitish Kumar comes from Soshit Samaj, but he finds it more comfortable to align with upper caste forces due to the underlying truth of socio-economic mobility of Kurmis, which was visible even during Jagdev Prasad regime. Does the Jagdev Babu address this rift within the fold of Soshits and proposes a suitable solution other than disowning of Brahmanism? So in my understanding, he is asking that during Jagdev Prasad time, there was also a rift between Kurmis and others. If we think that Nitish Kumar comes from that Soshit Samaj, how do we address that rift? मैंने तो कहा ही कि आजादी के बाद आफ्टर पूरे कंट्री में ऐसा राजनेता पॉलिटिशियन नहीं हुआ जिसने साफ साफ कह दिया कि हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि हमारी पार्टी में कोई भी पदाधिकारी अधिकारी कहने की हिम्मत इसी पार्टी में आज भी है, ये रिटेन है। अब जगदेव बाबू ने सिद्धांत दिया, अब कोई उस सिद्धांत को माने या न माने मारा जाना है, वो तीनों तरफ रहेगा
मिलजुल कर रहेगा, जैसे आज के राजनेता कर रहे हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं, शोषक की तरफ भी हैं शोषित की तरफ भी हैं। जो फाइटिंग थी, जो स्ट्रगल था वो था, इसलिए तो जगदेव बाबू मारे गए। जगदेव बाबू के सिद्धांत पर चलना, तलवार की धार पर चलने में आज भी कई नेता के पैर डगमग डगमग करते हैं। अखिलेश यादव चलते हैं नहीं चलते हैं, नीतीश कुमार चलते हैं नहीं चलते हैं। अब उसके लिए बाबू जगदेव प्रसाद क्या कर सकते हैं? जगदेव बाबू ने तो थ्योरी दे दिया। अब हम, आपकी जिम्मेवारी है कि शोषितों के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करें। इट इज माई ड्यूटी। I think, thank you sir, thank you very much. And others can pose their question by unmuting. Excuse me, sir, can I ask one question? I'm Sampath Kumar. Hello. And मैं राजेंद्र प्रसाद से एक विनती है कि बड़ा अच्छी प्रेजेंटेशन दिए हैं के बारे में। सिर्फ लेनिन थे नहीं, उन्हें मार्क्स और लेनिन मिलके भी थे बोल के। और एक मुझे जानना है कि अपने जो शोषित लोगों का सामाजिक कम्युनिटी है वो हाईली स्कैटर्ड है ना, उसे यूनाइट करने के लिए सामाजिक संगठन का कुछ एक्टिविटी चलाए थे क्या के टाइम पे उन्होंने? और उसकी विचारधारा कुछ बात सो बहुत लोगों अनटचेबल्स बोल के जिन लोगों का सालों जो हो रहा है, लोगों से भी रिप्रेजेंटेशन प्रमोट करने का अचीवमेंट्स, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। आवाज नहीं आ रही है। Was it audible? Sir, Sampath Kumar sir is asking, what are the activities done by Jagdev Prasad in uniting backward caste, Dalits? What are the programs he has done? What are the activities? जगदेव प्रसाद का तो थ्योरी ही था 90% का। 90% में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी आते थे। 90% कहां से आप हुए? वो तो संगठन बनाए थे 90% लोगों के लिए, उसमें पूरे बहुजन शामिल थे। उसमें बहुजन समाज का ये हाशिए के लोगों का, मार्जिनल पीपुल का पूरा तो जोड़ लिए थे, तभी तो 90% हो रहा है। और इन लोगों का बहुत बड़ा संगठन कायम किए थे। जगदेव बाबू की पार्टी में बहुजन समाज के हर कास्ट के लोग थे। एससी के लोग थे, एसटी के लोग थे, ओबीसी के लोग थे, जिसमें सैकड़ों हमारे परिचित हैं, जिसको मैं पर्सनली जानता हूं। उन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में। बाबू जगदेव प्रसाद और राम स्वरूप वर्मा ने पूरी एक पहचान दे दी कर रहा है संविधान की। एसी है, ओबीसी है, इन सबको मिलाकर के उन्होंने कहा कि ये लोग शोषित हैं। राम स्वरूप वर्मा ने कहा कि ये लोग अर्जक हैं, अर्न करने वाले लोग हैं, यही लोग अर्न करते हैं, बाकी लोग तो लूट करके खा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उनका नाम अर्जक रखा। उस अर्जक में सारे लोग थे, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी के लोग थे। इस स्तर पर संगठन का बड़ा काम किया बाबू जगदेव प्रसाद ने। Yeah, please. Hello. In a similar angle, one more question: were there any efforts for intercaste marriages? Intercaste मैरिज के वो पक्ष में थे। स्त्रियों के उत्थान के पक्ष में थे।
बहुजन साहित्य को लागू करने के पक्ष में थे, आरक्षण के पक्ष में थे। कर्पूरी ठाकुर ने जो बिहार में रिजर्वेशन लागू किया था पहली बार, तो मुंगेरी लाल कमीशन बना था, वो दरोगा प्रसाद राय जब मुख्य बाबू का ही वो देन है। एनिहिलेशन ऑफ कैस्ट के बारे में कुछ चला, वो जानना चाहता हूँ बस। इंटरकास्ट उस समय मैरिज हुआ, कम हुआ, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है बहुत ट्रेडिशनल है, बावजूद इसके इंटरकास्ट मैरिज हुआ। इसके एग्जाम्पल हैं उस समय में। अरे यही देखिए आपको, थैंक यू, जगजीवन राम और ये सुमित्रा देवी का बेटा बेटी की शादी हुई। सुमित्रा देवी ओबीसी की थी और जगजीवन राम शेड्यूल कास्ट के थे। मीरा कुमार की शादी हुई ओबीसी से। थैंक यू। Hello, can I ask a question? Yeah, please. Yeah. The initial stages between Lohia and Jayaprakash, he had chosen Lohia, and again at second stage he differed with Lohia and formed a separate party. So on what grounds he differed with Ram Manohar Lohia? जेपी से अलग हो चुके थे लोहिया, और लोहिया से अलग हो चुके थे जगदेव प्रसाद। जगदेव प्रसाद लोहिया कहते थे पिछड़ा पावे 100 में 60, वो 60 के पक्षधर थे। जगदेव बाबू 90 के पक्षधर थे। लोहिया का मानना था कि Sir, your voice is not clear. वुमेन हैं वो भी शोषित हैं। अपर कास्ट की वुमेन को शोषित मानते थे लोहिया। और जगदेव हेलो, Yeah, please sir, please continue. आवाज आ रही है? Your voice is not clear. हेलो, Sir, आवाज आ रही है? Please continue. हाँ, आवाज आ रही है? Sir, your voice is not Hello? clear. Yeah. हेलो, Yeah, please sir, continue. हेलो, Can I come in? हेलो, Yeah. Shall I? Yeah, please. Yeah. So the party led by Lohia has resolved that the backward should be out of 100. The 60% of government and administration. Rajendra Prasad Singh sir, your voice is not clear. I think if Dr. Santosh can explain, it would be better. अपर कास्ट के वुमेन को भी Sir, please you rejoin so that आवाज नहीं जा रही है। आवाज नहीं जा रही। Can Dr. Santosh explain? Santosh. Yeah. So when the Babu Jagdev Prasad is departed with Lohia, the main point was that when Lohia resolved his party slogan that the backward should get 60% and the upper castes and the Savarnas should get 40%. But in implementation, what has happened was the share of 60%
of the backwards, and this 40% among these upper caste, what these people used to do is that the upper caste women, sorry, this other way, the upper caste women, they considered as backward, and the 60% used by the upper caste, and within the 40% also the upper caste women has taken. Therefore, the entire political positions and the power was enjoyed by the upper caste. Therefore, he differed with the Lohia and he joined with Ram Pravesh Verma, and he started his own Socialist Samaj party, the Socialist Samaj Dal. Thank you, Dr. Santosh. Wonderful. Thank you, sir. I think if there are any questions you can pose. I am trying to ask the rejoin. Santosh, would you like to add some points? Meanwhile, Rajendra Prasad Singh will join. Sir. आवाज जा रही है? Yes, sir. Sir, there was a question Santosh explained to some extent why Jagdev Prasad was deferred with Lohia. लोहिया ने जो मुख्यमंत्री बनवाई जिसको बिहार का, लोहिया ने जिसको मुख्यमंत्री बनवाया था, उस कैबिनेट में शोषितों को जगह नहीं मिली थी। उसमें 60 से 70% शोषक ही मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। जगदेव बाबू ने विरोध किया, कहा कि ये कौन सा लोहियाबाद है कि आपने 60-70% शोषकों को कैबिनेट में रखा है, इन लोगों को हटाइए। और इसी के विरोध में उन्होंने पार्टी बनाई, और जब वो मुख्यमंत्री बनाए बीपी मंडल को, तब शोषक वर्ग के लोगों से ही, एससी, एसटी, ओबीसी के ही मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उसके पहले लोहिया के इशारे पर जिस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उसमें तो शेड्यूल कास्ट मुसलमान थे ही नहीं, एक भी नहीं थे। लोहिया का मानना था कि जो अपर कास्ट के वोमेन हैं, महिलाएं हैं, वो दलित हैं। जगदेव प्रसाद कहते थे कि नहीं, अपर कास्ट की महिलाएं दलित नहीं हैं। उनका नारा था बड़ा प्रसिद्ध, आप लोग पता नहीं उसको समझ पाइएगा कि नहीं। उनका नारा था कि अगले सावन भादों में गोरी कलाई कादों में। इसका मतलब हुआ कि अगले सावन भादों में, माने अगले सावन में रोपनी होती है, धान की खेती होती है, तो उसमें दलित और पिछड़े समाज की महिलाएं धान रोपती हैं।
मिट्टी कीचड़ में। जगदेव बाबू का कहना था कि अगले सावन भादों में हमको गोरी कलाई को भी धान की खेती में लगा देना है, डुबा देना है उसको भी पंख में, जिस तरह से दलित परिवार की और पिछड़े समाज की महिलाएं करती हैं। कई बातें थी जिसको लेकर के जगदेव बाबू और लोहिया में काफी अंतर था। अंतर समझ में आया या फिर से मैं बोल दूं? नहीं सर, it's very clear. अच्छा, so now others can ask questions by unmuting themselves. Now voice is clear. I request others to ask questions. Sir, I just am asking, what was the relation with BSP and कांशीराम मूवमेंट? कांशीराम ने जिसको बहुजन कहा, उसी का तो जगदेव प्रसाद ने शोषित कहा। एक ही चीज थी, एक ही चीज थी। बहुजन टर्मिनोलॉजी को कांशीराम ने कहां से अडॉप्ट किया? कांशीराम ने बहुजन का आइडियोलॉजी बुद्ध से लिया, सम्राट अशोक से लिया। बुद्धि तो बहुजन शब्द का प्रथम बार फर्स्ट प्रयोग किए हैं लिटरेचर में बहुजन का, और इंस्क्रिप्शन में सम्राट अशोक ने बहु कल्याणे, बहुजन कल्याण के लिए मेरा शासन होगा। सम्राट अशोक का सेकेंड इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शन इसी पर आधारित है, जिसमें बहु कल्याणे प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, माने बहुजन कल्याण के लिए। उसी धारा के तो ये भी थे कांशीराम। कांशीराम बड़े समझदार लीडर थे। वो जानते जब तक सांस्कृतिक आंदोलन नहीं होगा, पॉलिटिक्स पर हमारी पकड़ नहीं होगी, इसलिए उन्होंने DS4 और बहुत सारे सांस्कृतिक जो आंदोलन चलाए थे वो ठीक जगदेव बाबू से ही प्रेरित थे। जगदेव बाबू तो यही किए, और रामस्वरूप वर्मा, उन्होंने सांस्कृतिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन दोनों चलाए। इस मामले में बड़ी समरूपता है, एक रूपता है दोनों लोगों में, कांशीराम में भी और इन लोगों में भी। कांशीराम ने भी यही किया, दोनों उन्होंने सांस्कृतिक मूवमेंट चलाया था। कांशीराम ने तब पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी BSP। ओके, and others can ask questions. Anybody can ask question. Sir, Jagdev Prasad association with Ramswarup Verma, what were the cultural activities that they were brought for mass people? What are the cultural specific activities along with Ramswarup Verma during Arjak Sangh movement? अर्जक संघ मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट था। उसको पर बोलने के लिए 2-4 घंटे का समय चाहिए। अर्जक संघ ने हर चीज का विरोध किया, पूजा पाठ, आत्मा परमात्मा, पुनर्जन्म, भाग्यवाद, ज्योतिष विद्या, सबको कहा कि हटाओ। जितने ये ब्राह्मणवादी पर्व त्योहार हैं, फेस्टिवल हैं, सबको हटाओ और नए ढंग का फेस्टिवल लाओ, संवैधानिक। पूरा उन लोगों का जो लिटरेचर है, जिसमें चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु थे, ये भारती जी थे, रामस्वरूप वर्मा थे, इन लोगों ने व्यापक सिद्धांत लिखा है अर्जक संघ का। उसमें शादी की अलग रीति है, विवाह करने के, मैरिज का पूरा अलग कंसेप्ट है। उस पद्धति से आज भी बिहार में आज भी मैरिज होता है अर्जक पद्धति से। अर्जक पद्धति से सारे संस्कार किए जाते हैं बिहार में आज भी। उन्होंने आमूल चूल परिवर्तन किया अर्जक संघ के माध्यम से। वो अलग से लेक्चर की उस पर जरूरत है।
हर चीज का उन्होंने जितना भी पाखंड है सबका विरोध किया आर्यक संघ, एक गलत है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। If there are any questions, please ask, otherwise we will conclude this session. So please unmute yourself and pose a question. So if there are no questions, I think we thank, on behalf of Satyashodak lecture series, I personally we thank to the Professor Rajendra Prasad Singh sir for your wonderful lecture. People have attended across India. This lecture we are recording. We will upload in YouTube. So we are all also on Facebook Live. Many people are watching. So it's really great opportunity to listen Professor Rajendra Prasad Singh sir. I also so definitely what you suggested is Arjak Sangh is very important movement in North India, which inspired thousands and lakhs of people. Definitely we will have a lecture on Ram Swarup Verma, his contribution in this lecture series. Sir, we will keep in contact with you, and definitely through your writings, through your lectures, we will continue to learn. We will continue to engage with your works and your ideas. Hopefully, your works and your research soon, if it is translated in English, I think that will benefit a lot across India, across globe. People will learn and people will engage with your ideas. With this, we are very thankful, sir, for your time and your insights. And thanks to everyone for their questions and peacefully listening. I think we will continue to show this same spirit, and in coming week also we will have we will continue to have more lectures like people like Ram Swarup Verma, Lalai Singh Periyar, and there are many from Punjab, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. So please keep attending this lecture series. And definitely we have to identify at least 30 to 40 anti-caste Shudra intellectuals, and we have to show this world that how they have forgotten the Shudra intellectual traditions along with the Dalit intellectual traditions. I think there is a great need to engage with the anti-caste intellectual traditions in order to challenge the deep-rooted Brahminical tradition, both in the politics, both in the cultural domain, in the economical domain. With this, we thank everyone, and I would like to conclude this meeting. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Santosh, for wonderfully summarizing and adding more points. Of course, Santosh is part of our team. Thank you, everyone.